Hello students, I Dr. Arvind Kumar. Now I am going to uh, start the difference in management accounting function across strategies. In previous class, I deal with the two here 2 points. The management accounting functions regarding role of cost in pricing, role of budget for the planning, and what is the difference on two front in the course of product differentiation and cost leadership. In previous classes, I I was tell about that. Now I am going to discuss the third functions of management accounting, the role of budget in control. The function role of budget in control in the event of product differentiations, there is loose cost control. Why? Because here in the course of product differentiations, innovations, quality improvement, the budget should be flexible. There is no scope here for rigidness. That's why the here the cost control is loose, flexible, adjustable. But on contrary, on the front of cost leadership, here there is a type cost control. Because here there is a hard and fast policy of top management. No one go beyond the budget. That's why here the tight control, cost control are evident in the front of cost leadership. Now the function activity based costing for product and capacity planning. On these functions, in course of product differentiations, these functions are not critical. So on the function of management accounting, the activity based costing for product and capacity planning, on that front, the in the evidence of product differentiation, this function is not critical. Why? Because here the cost curtailment is not the objective. Here the objective is the product improvement, the quality improvement.
the more and more value additions. That's why here activity based costing for the curtailment of product cost and capacity planning is here not critical. बहुत ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण ये बात नहीं है, जबकि ऑन द फ्रंट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप critical full capacity utilization to achieve economies of scale. On the front of cost leadership, this is critical. ये बहुत अहम है, बहुत जरूरी है. Because everything should be according to the budget, and in activity based costing, the cost curtailment will done on every activities whatever be possible. Here the minimization of cost is the objective of management accounting. So on the front of cost leadership, this is critical. ये बहुत अहम है. Now on the function customer profitability analysis, on that functions on the front of product differentiations, this function is not very critical. Why? On the front of product differentiations, whenever any company improve its product, or here there is more value addition of the product, or produce more qualitative products, certainly the company's expectation for the high price, high profitability. That's why here, what is the profitability of the customer? It is not very important. किसी ग्राहक को क्या बचत होगा, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस में जो है ये बहुत ज़्यादा अहम बात नहीं है. because here more and more efforts on innovations, quality improvement, betterment of products, and better price for better profitability and for better market. ये बिल्कुल ही उल्टा जो है सोच है कि हम किसी चीज़ के दाम को न बढ़ा के उसकी क्वालिटी को बढ़ा देंगे, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देंगे, उसमें ऐसा सुधार लाएंगे कि लोग उसके कारण जो है उस प्रोडक्ट को खरीदें और बाजार में जो है उसका जो है एक बड़ा जो है हिस्सा जो है वो जो है इस कारण से रहे कि ये बहुत गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट है, नहीं कि हम किसी चीज़ को सिर्फ सस्ता करने पर जो है तुले रहें. जितना सस्ता करेंगे उतना ही ज़्यादा माल बिकेगा. ये
सोच प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस में नहीं रहती है। ठीक इसका उल्टा कॉस्ट लीडरशिप में दिस फंक्शन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस दिस इज क्रिटिकल टू कंट्रोल टू सर्व कस्टमर। ये बहुत अहम जो है सो यहाँ हो जाता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कि हमारे प्रोडक्ट के दाम से ग्राहकों को क्या बचत होगी, क्या सहूलियत होगी, जो है वो बचत के लिहाज से ही देखा जाता है। whatever be the saving incur on the part of customer is very important rather than what is the quality of the products. Now at that functions benchmarking cost against competitions. On that front, in course of product differentiation, this is not critical. Benchmarking cost against competitions. What is mean by benchmarking? Benchmarking means ascertaining the positions in the competitive market. हम कहाँ हैं, हमारा कहाँ स्थान है, हम किस जगह पर हैं, 1 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर कौन है, किसका मार्केट सबसे ज़्यादा है, इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। यही सब जो है बेंचमार्किंग है। और ये जो चीज़ें हैं बेंचमार्किंग का, ये कंपटीशन में जो है इनहेरेंट है, लाजिमी है। कोई भी आदमी, कोई भी जो है कंपनी दूसरे कंपनी से अपनी तुलना करेगी ही, विभिन्न मुद्दे पर तुलना करेगी, इसलिए कि कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। लेकिन on the front of product differentiation, this is not very critical functions. हम यहाँ दूसरे से तुलना करने के बजाय अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, अपने प्रोडक्ट डिजाइन को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, नहीं कि दूसरा जो है किस स्थान पर है, उसका क्या मार्केट है, उसका मार्केट शेयर क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खपाई जाती है। तो ये फंक्शंस जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस के जो है मुद्दे पर बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, बहुत दिस इज नॉट क्रिटिकल। बट ऑन द फ्रंट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, this is critical to be the most efficient producer, because here there is competitions, and by the cost curtailment, any company want to be a efficient producers कि साहब हम सबसे कम कीमत पर अपना माल जो है वो बेचते हैं, हम सबसे इफिशियंट हैं। भले ही माल जो है उसमें क्या गुणवत्ता है उससे मतलब नहीं है, हम जो है कम कीमत पर अपने माल को बेचते हैं
हम सबसे इफिशिएंट जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, ये सोच होती है। तो देखा जा सकता है कि ये बेंचमार्किंग कॉस्ट अगेंस्ट कंपटीशंस, इस मुद्दे पर जो है इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन this function is not very critical. Here more efforts is for the innovations of product, for the improvement of product, for the production of qualitative products, quality service. These things are important. Here the comparison from others are not very important. But on the front of cost leadership, this is critical because one company want to be a most efficient producers. Now, on divisional performance evaluation and incentives, on that functions, in the front of product differentiations, more emphasis on profit maximization through revenue generations. Revenue means whatever a company sell out, the receipt is so-called revenue. So on that function, divisional performance evaluation and incentives, in course of product differentiations, the more emphasis on profit maximizations through revenue generations. The company want to sell more and more by improvement in the product, by innovations in the product, by quality service providing for the product. All the things in product differentiations based on qualitative activities, innovative activities, rather than cost curtailment. But on contrary, on the front of cost leadership, more emphasis on profit maximizations by cost control. Here, cost control is very important. No one go beyond the budgets. This is hard and fast policy of the top management in the course of cost leadership. So, at that function, divisional performance evaluation and incentives, the more emphasis on profit maximizations by cost control. Even the incentives of salesmen, agents, and any other agency which is responsible for the sales and marketing of the product, here even there is curtailment in the incentives of that market force is
concerns. How cruel that! The marketing force on which the sales volumes are different on the front of cost leadership. Here, there is no scope for better incentives, and here there is cruel evaluations of profits. Who are making greater profits and do curtail debts. This is the approach in cost leadership. Now, the question arises, which approach is better? The product differentiation or cost leadership? Then my opinion in that, in both, no one is bad, no one is good. These depend upon the circumstances. क्या परिस्थितियां हैं, इस पर निर्भर करता है कि कौन सही है और क्या गलत है, और दोनों के ही संतुलन पर जो है एक बेहतर जो है कॉस्ट मैनेजमेंट जो है किया जा सकता है, दोनों के संतुलन से। One company can never be much enthusiastic relating product differentiations. And on the other hand, no one company should very cruel on the front of cost curtailment. This is bad. You are businessman and you have to adjust with the market and demand of the customer. So any religious attitude regarding product and product cost is very detrimental to the organizations. So a good balance between two is justifiable. हम साहब अपने प्रोडक्ट्स में सुधार लाएंगे, उसके गुणवत्ता में जो है परिवर्तन करेंगे, अच्छी गुणवत्ता देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, लेकिन हम भी ये भी ध्यान रखेंगे कि इस कारण से उत्पाद का दाम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाए कि उसको लोग अफोर्ड नहीं कर सके। एक कहावत है, एक कहावत नहीं, उसको एक दुष्यंत कुमार एक हिंदी के गजलकार हुए हैं, उनकी एक पंक्ति है
कि सूरत सुधारने के फेरे में सूरत बिगड़ गई। एक पंक्ति है कि सूरत सुधारना चाहते थे और सूरत सुधारने के फेरे में और भी सूरत बिगड़ गई। तो ये चीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के जो है मुद्दे पर देखा जाना चाहिए कि हम जो सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उससे जो है सुधारात्मक काम के बदले जो है काम जो है बिगड़ना शुरू हो जाए, परेशानी खड़ी होनी शुरू हो जाए। तो ये दोनों के ही संतुलन पर जो है एक बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो संभव है। और जो आज नए समय में स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, उसमें तो दोनों का ही समन्वय जरूरी है, दोनों का ही एक संतुलन बहुत जरूरी है। किसी एक साइड में जाने से जो है वो गड़बड़ियां पैदा होनी शुरू हो जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है कि 20 बरस 25 बरस पहले जो उत्पाद बिक रहे थे, आज उसकी गुणवत्ता में कितनी सुधार आई है, उसमें कितने परिवर्तन आए हैं, वो देखा जा सकता है। एक जमाने में बजाज का स्कूटर हुआ करता था, चेतक, प्रिया, ये सब कुछ व्हीलर हुआ करते थे। और ये राजदूत मोटरसाइकिल, बुलेट, ये सब कुछ टू व्हीलर सब हुआ करते थे। बाद में इसमें कई कंपनियों ने जो है अपना इंटरप्राइज किया। हीरो होंडा, विदेशी कंपनी जो है सुजुकी, यामाहा, ये सारी जो है कंपनियां जो है नए प्रोडक्ट डिजाइन के साथ जो है बाजार में उतरी। और कहाँ दिखाई पड़ता है बजाज का चेतक और जो है प्रिया स्कूटर, नहीं दिखाई पड़ता है। अब तो स्कूटी आ गई है। तो ये 25-30 वर्ष के अंदर के परिवर्तन को हम देख सकते हैं कि व्यवसाय में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितना अहम है, कितना जरूरी है। बिना उसके जो है कोई कंपनी सरवाइव नहीं कर सकेगी। नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं, विकसित देशों में जो बातें आ रही हैं उसको विकासशील देश जो है उसका जो है अनुकरण करता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस जो है, प्रोडक्ट इनोवेशंस जो है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है, वो तो रुकने वाली चीज नहीं है। अगर कोई कंपनी जो है एक जगह स्थिर है इस मुद्दे पर, तो उसके सर्वाइवल का प्रश्न उठ खड़ा होता है। फेंका जाइएगा बाजार से, खत्म हो जाइएगा, कोई नहीं पूछेगा। दूसरी तरफ ये कॉस्ट लीडरशिप जो है ये बहुत बुनियादी चीज है। अब जैसे कि 1 लाख का भी मोटरसाइकिल तो मिलता ही है, लेकिन
उसका प्रोडक्शंस जो है वो कितने के संख्या में होता है? बहुत कम संख्या में होती है, इसलिए कि उसके ग्राहक जो है सो बहुत सीमित हैं। जो एक जनरल जो रेंज है मोटरसाइकिल का, 45,000, 50,000, 60,000, ज़्यादातर मोटरसाइकिलों का निर्माण इसी रेंज में होता है। क्यों होता है? उसके पीछे कॉस्ट लीडरशिप है। इस रेंज के मोटरसाइकिल को ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत महंगी मोटरसाइकिल हो जाएगी, उसको लोग नहीं जो है अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ कॉस्ट लीडरशिप जो है तो बुनियादी तौर पर है ही। तो इन दोनों का समन्वय जो है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक गुण है। द बैलेंस बिटवीन द टू, द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप, is a feature of strategic cost management. The price that the market is willing to pay for innovative product depends upon the perceived value relative to other competing products. Thus, product costs do not play a critical role in pricing as the market's perceptions of value rest on product differentiations. The price that a market is willing to pay for innovative products depends on the perceived value relative to other competing product. Thus, product costs do not play a critical role in pricing as the market perception of value rests on product differentiations. किसी भी उत्पाद या सेवा की जो गुणवत्ता है वही जो है कॉम्पिटिटिव फीचर्स होता है। कंपटीशंस में वही काम आते हैं। अगर 10 कंपनियों के प्रोडक्ट जो है बाजार में हैं तो एक दिए हुए मूल्य पर, जो कि यदि स्थिर माना जाए, इस कंपनी के प्रोडक्ट में कितनी गुणवत्ता है, यही निर्भर करता है कि वह उत्पाद जो है
लोगों के दिलो दिमाग में जो है कितनी चढ़ती है। एक दिए हुए मूल्य पर अगर मूल्य को स्थिर मान लिया जाए और उसमें 10 कंपनियों के उत्पाद हैं, उसमें एक दो कंपनी के उत्पाद बेहतर हैं, उसी मूल्य पर बेहतर हैं, तो निसंदेह वो दोनों ही कंपनियों का जो है माल जो है बाजार में बिकेगा, बहुत बिकेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि नहीं बिके। तो यहां पर दोनों ही बात, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस विथ कॉस्ट लीडरशिप, इन दोनों ही के संतुलन से कोई जो है बाजार पर राज कर सकता है। बस यही दो तरीका ही है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस एंड कॉस्ट लीडरशिप। इन दो के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, बेहतर सर्विस आप दे सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं, लेकिन वो भी जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस के ही अंतर्गत आता है। नाउ टू foster innovations and to make differentiation a sustainable strategy, budgets must provide enough discretions for managers and employees to try on new ideas. To foster innovations and to make differentiations a sustainable strategy, budgets must provide enough discretion for the managers and employees to try out new ideas. बजट के अंदर एक स्वनिर्णय का एक स्थान होना चाहिए। बजट शुड बी फ्लेक्सिबल, वो बहुत रिलीजियस नहीं होना चाहिए। उसमें लचीलापन होना चाहिए कि नई बातों को, नई सोच को वो बजट जो है पचा सके। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट जो है बजट कंट्रोल होगा, तो वहाँ इनोवेटिव आइडियाज जो है, इनोवेशंस जो है, वो मर जाएगा। बहुत ज़्यादा बजटरी कंट्रोल के माहौल में जो है वो नवीनीकरण जो है, उत्पाद नवीकरण जो है, एक दूर की कौड़ी वाली बात है। इसलिए बजट्स को जो है वो लचीला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टू मच budgetary control is arduous to the organizations. हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ऐसे भी कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते। अब ये संस्कृत का जो है, जो एक ही पंक्ति है, अति सर्वत्र वर्जते। तो ये जो बजटरी कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल है, अगर ये भी अगर अति हो जाती है तो इसमें इनोवेटिव आइडिया जो है वो तो दम तोड़ देगी। और पूर्व में आपने देखा है कि बिना ये इनोवेटिव आइडिया, बिना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस के कोई बिजनेस सरवाइव कर ही नहीं सकती है। सो बजट शुड बी फ्लेक्सिबल, कोप अप विथ all the innovations and product differentiations as per market requirement.
in the competitive business world. हम साहब जो है वैसा बजट में एक लचीलापन रखेंगे कि नई बातों को हम पचा सकें, नई बातें जो है उसके अंदर जो है वो जन्म ले सके। आखिर जो नई बातों हैं बात हैं, जो प्रोडक्ट इनोवेशंस है, डिफ्रेंसिएशंस है, वही तो जो है एसेंस है जो है बिजनेस का। उसको तो जिंदा रखनी ही है, हर हाल में जिंदा रखनी है, नहीं तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही एक दिन जो है सो उसका भट्टा बैठ जाएगा। ओवर emphasis on the use of budgets to evaluate actual performance may prove counterproductive. Employee will be worried more about controlling cost and staying within the budget than about seeking and testing new ideas. जब बहुत ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल का माहौल होगा, बजटरी कंट्रोल का माहौल होगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इम्प्लाई हैं उनका अधिक से अधिक जो ध्यान जो होगा वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन में ही लगा रहेगा। उस लिमिट के अंदर रहने में ही उनका जो है ज़्यादा दिमाग खर्चा होता रहेगा। दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट इनोवेशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से है, क्वालिटी सर्विस है, उसकी तरफ ध्यान नहीं रहेगा, जो कि बिजनेस का एक जो है एसेंस है। उसी से बिजनेस जो है आगे बढ़ती है, उसी से बिजनेस जो है वो जिंदा रहती है। तो ये इस तरह का द टू मच बजटरी कंट्रोल एंड क्रूएल कॉस्ट curtailment both are arduous to any business organizations. बिजनेस में साहब ये सब नहीं चल सकता है, थाना पुलिस में ये सब चल सकता है, बिजनेस जहाँ है वहाँ तो भाई बिजनेस को बिजनेस के ढंग से चलाया जाना पड़ता है। Overall, the emphasis in cost measurement is not so much measuring the cost of each product precisely as it is on ensuring the overall profitability of the entire product portfolio. Overall, the emphasis in cost measurement is not so much measuring the cost of each product precisely as it is on ensuring the overall profitability of the entire product portfolio. अब हरेक उत्पाद ये कॉस्ट कंट्रोल में जो है माथा पच्ची करने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। कि हमारे पास 5 तरह के उत्पाद हैं तो किसका कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, इसका मार्केट में कितना जो है सो कवरेज है। अब चूंकि कॉस्ट लीडरशिप में जो है एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस होता ही है, तो अब इस मुद्दे पर जो है अब 5-6 प्रोडक्ट किसी कंपनी की है तो अब सबको अलग अलग एनालाइज करना कि
किस में ज़्यादा कॉस्टिंग जो है सो आ रहा है, किस में कम प्रॉफिट है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किसका शेयर ज़्यादा है, किसका कम है, ये सब जस्टिफाइबल नहीं है। अगर किसी कंपनी के 6 तरह के शेयर हैं, 6 तरह के अगर प्रोडक्ट हैं, तो उसमें से अगर कोई एक प्रोडक्ट जो है घाटा भी दे रहा है, तो स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, वो आप देखिए कि ओवरऑल जो है, ओवरऑल क्या आपकी स्थिति है, ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल स्थिति में है कि नहीं है। कॉस्ट लीडरशिप के मुद्दे पर जो है उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देना जो है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ। क्यों? वो प्रोडक्ट जो आपको घाटा दे रही है, हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के कारण आपका अन्य प्रोडक्ट भी बिकता हो। अगर उस प्रोडक्ट को आप हटा दीजिएगा तो हो सकता है कि दूसरा प्रोडक्ट भी आपका बिकना बंद हो जाए। ऐसा लोगों को लगता हो कि जो है इस कंपनी का ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है, वो प्रोडक्ट लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है, भले ही आपको घाटा दे रही है। तो जब एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट जो है ग्राहकों के दिल दिमाग में बसी हुई है, तो वो निश्चित है कि उस कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट के प्रति भी आकर्षित होगा। बट नेचुरल है, ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी का जो है कोई माल खरीदते हैं, अगर वही कंपनी का कोई दूसरा माल अगर बाजार में आ जाता है तो हम उसको एक बार खरीद के टेस्ट करना चाहते हैं कि ये ऐसा माल है, क्योंकि उसका एक प्रोडक्ट जो है हम प्रयोग में ला रहे हैं। इस कारण से हम चाहते हैं कि उसका अन्य प्रोडक्ट भी हम देखें कि उसकी क्या गुणवत्ता है, कैसा है। अब देखिए, पहला जो प्रोडक्ट जो कि ग्राहक पहले से प्रयोग में ला रहा है, वो आपका यहाँ पर जो है मार्केट ड्राइवर है। उसी के कारण जो है अगला जो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके तरफ जो है ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। तो पहला प्रोडक्ट जो आपका जो है ग्राहकों के दिल दिमाग में है वो मार्केट ड्राइवर है। यदि वो प्रोडक्ट आपको घाटा दे रही है तो उसका लाभ ये है कि आने वाला जो प्रोडक्ट है वो जो कि आपको फायदा देने वाली है उसका रास्ता जो है वो प्रशस्त करती है। अगर आप पहला प्रोडक्ट जो कि पहले से कस्टमर प्रयोग में ला रहा था उसको अगर बंद कर देते हैं क्योंकि हमको घाटा इसमें हो रहा है, तो फिर तो आपका जो है आने वाला अगला प्रोडक्ट है उसका भी रास्ता बंद हो जाता है। ये एक सर्कमस्टेंसेज में बता रहा हूँ, इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है वो अलग अलग पोर्टफोलियो पर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता है कि किस प्रोडक्ट का कितना मार्केट है, किससे कितना बेनिफिट हो रहा है, किसमें क्या खर्चा है, किसमें क्या लागत है, किसमें क्या आमदनी है। नहीं, वो कंबाइंड जो है कंपनी जो है
वो एनालाइज करती है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हाँ, जिस प्रोडक्ट में हमको लॉस हो रहा है तो उसमें देखा जाना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट है बाजार पर, और उसमें क्या कुछ किया जा सकता है कि ये भी प्रोडक्ट जो है हमारा जो है लाभ देने लगे। नहीं कि कॉस्ट लीडरशिप के क्रूएल पॉलिसी पर जो है उस प्रोडक्ट को ही समाप्त किया जाना चाहिए। नहीं, ये स्टडी कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं करता है। In contrast, firms that follow the cost leadership strategy target price sensitive market segment by offering product at as a low price as possible. Cost leadership is a high volume, low margin strategy. It is especially effective in established mature market with little that differentiates competing products. अब एक बात तो है कि क्या होना चाहिए, और दूसरी बात है कि क्या हो रहा है। ये दोनों ही बातों में अंतर है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। In the contrast, firms that follow the cost leadership strategy target price sensitive market segment by offering product at as low a price as possible. Cost leadership is a high volume, low margin strategy. It is especially effective in established mature market with little the differentiates competing little the differentiations competing products. It is especially effective in established mature market with little that differentiates competing product. होता क्या है क्या कि जो कंपनियां जो हैं वो कॉस्ट लीडरशिप को जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे जाती हैं, खास करके उस तरह के कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ की किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो वहाँ मैच्योर हो चुका है, लोग उसको जान चुके हैं, उसका टेस्ट जो है वो ग्राहक कर चुके हैं, एडवर्टीजमेंट उसका हो चुका है। वैसी स्थिति में सामान्यतः कंपनियां क्या करती हैं कि थोड़ी बहुत जो है उसमें डिफरेंशिएशन ला करके जो है वो चाहती है कि जो है हम जो है अपना सेल्स जो है अपना बढ़ाएं, और उनका अप्रोच जो होता है लो मार्जिन हाई सेल्स वॉल्यूम, लिटिल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस, ये सामान्यतः यही देखा जाता है। थोड़े बहुत जो है सो परिवर्तन जो है वो प्रोडक्ट में करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो मार्जिन वगैरह में जो है वो
कमी लाते हैं, प्रॉफिट में कुछ कमी लाते हैं, अपनी ही प्रॉफिट में कमी लाते हैं कि उसका दाम जो है कुछ जो है नीचे रहे, जिसके चलते जो है उसका जो है सेल्स वॉल्यूम जो है वो बना रहे हैं। सेल्स वॉल्यूम बने रहने से है क्या कि कंपटीटर जो है वो बाजार में जो है वो नहीं कम नहीं आ पाता है, या वो दबा रहता है। कंपनियां चाहती हैं कि भले ही उन्हें प्रॉफिट कम ही क्यों नहीं हो, लेकिन उनका सेल्स जो है वो बराबर जो है ज़्यादा होना चाहिए। सेल्स ज़्यादा होने से, सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होने से उसके कंपटीटर जो हैं वो उखड़े रहते हैं, उनका पैर जमने नहीं पाता है। नए जो इंट्रेंट हैं उनको परेशानियां होती हैं। बाजार पर जो है एक छत्र राज जो है कॉस्ट लीडरशिप से जो है और थोड़ी बहुत प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से जो है कंपनियां जो है करना चाहती हैं, और यही जो है दिखाई सामान्यतः दिखाई पड़ता है। जबकि हकीकत ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस जो है वो एक निहायत ही जरूरी जो है मुद्दा है। आज जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये तो निसंदेह जो है 20 वर्ष के बाद जो है वही प्रोडक्ट नहीं रह जाएंगे, सुधरा हुआ होगा, उसकी गुणवत्ता कुछ और होगी। तो ये तो एक कटु सत्य है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है कंपनियों का, उसमें बहुत ज़्यादा जो है फेरबदल जो है लाने की स्थिति में कंपनियां भी नहीं होती। उन बहुत ज़्यादा परिवर्तन के कारण भी कंपनियों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कोई कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती है, जबकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो एक चुनौती है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो उस चुनौती को नहीं स्वीकार करेगा भविष्य में वो बाजार में नहीं रहेगा। कॉस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम Cost planning and control system play a critical role in the success of a cost leadership strategy. ये तो साहब जो एकदम सैद्धांतिक बात है कि कॉस्ट प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम जो होगा वो जो है एक क्रूशियल रोल जो है वो उसका है, एक सफल जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में। जिस तरह की प्लानिंग होगी और जिस तरह का कंट्रोल सिस्टम होगा, बजटरी कंट्रोल सिस्टम,
एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। तो उसी पर निर्भर करेगा कि आप कितना कॉस्ट जो है मिनिमाइज कर पाते हैं, कितना कम कर पाते हैं। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में ये कॉस्ट प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, ये दोनों का अहम स्थान है। ये तो सैद्धांतिक बात है। Knowing the cost of a product is important in ensuring that it is profitable to make and sell the product at the prevailing market price. Knowing the cost of a product is important in ensuring that it is profitable to make and sell the product at the prevailing market price. What is the cost of any product? It reflects what will be the profit. Because in general, what is the market price of such type of product is obvious, clear, especially in perfect competitions. भैया नमक 1 किलो का जो होगा उसका अमूमन इतना से इतना के बीच में जो है कीमत होगा। अन्नपूर्णा नमक हो, टाटा नमक हो, कोई और नमक हो, उसकी कीमत इतने से इतने के बीच में होगी। तो अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो ऐसे में किसी प्रोडक्ट का दाम मोटा मोटी समझ में आ जाता है, क्या प्राइस होगा उसका, और उसमें जो कॉस्ट है अगर वो समझ में आ जाए, वो जाना अगर जाना जा सके तो उस प्रोडक्ट से क्या लाभ होगा इसका भी कुछ अंदाजा जो है मिल जाता है। यदि जो है उसका मार्केट कवरेज जो है उसकी कुछ आइडिया हो जाए, लेकिन उस प्रोडक्ट के कॉस्ट से ये पता चल जाता है कि ये मार्केट में उतारने लायक है कि नहीं। अब वैसा कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उतार के क्या कीजिएगा, जो कि गुणवत्ता के लिहाज से जो है कोई विशेष जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं और उसका दाम जो है अन्य जो उत्पाद हैं उससे ज़्यादा हो जाते हैं। जो बाज़ार में अन्य कंपटीटर के जो माल है उससे वो ज़्यादा हो जाते हैं और गुणवत्ता में कोई विशेष जो है उसमें परिवर्तन नहीं है। वैसे प्रोडक्ट को बाजार में उतार के क्या करेंगे, वो तो आपको घाटा देगा। तो किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो ये बताता है कि ये इस प्रोडक्ट का जो है भविष्य क्या है, इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है।
इसके अंदर जो है मार्केट स्ट्रेंथ कितना, ये वो बयां कर देती है। तो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो अपने आप में तो एक अहम चीज़ तो है ही, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस तो है ही अहम, कॉस्ट कंट्रोल भी जो है उतना ही अहम है। मैंने शुरू में ही कहा था कि दोनों का ही संतुलन का नाम बिजनेस है। Flexible budget play an important role in identifying and eliminating operational efficiencies. Inefficiencies and wastage can cost the firm its competitive edge in the price sensitive segment. Flexible budgets play an important role in identifying and eliminating operational inefficiencies. जो फ्लेक्सिबल बजट होते हैं, जो लचीले जो बजट जो होते हैं, उसका एक अहम पक्ष ये है कि जो ऑपरेशनल इनइफिशियंसीज जो है उसको जो है आइडेंटिफाई करता है और उसको एलिमिनेट भी करता है। द फ्लेक्सिबल बजट play an important role in identifying and eliminating operational inefficiencies. जो ऑपरेशनल इनइफिशियंसीज है, फ्लेक्सिबल बजट जो है उसको आइडेंटिफाई भी करता है और उसको एलिमिनेट भी करता है। ठीक है, हमारा साहब एक बजट है, लेकिन जब हमने जो है मॉनिटर किया, एवेल्युएट किया, फिजिकल वेरिफिकेशंस किया, तो हमने जो है बहुत सारे लैचेज देखे। उसके चलते जो है हमें कुछ जो है अतिरिक्त जो है खर्च करने की आवश्यकता पड़ी, तो हम उसको तो खर्च करेंगे ही। ये तभी संभव है जब बजट लचीला हो। अगर बजट लचीला नहीं है, हार्ड एंड फास्ट है, तब तो कोई सुधारात्मक कार्य हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो है अतिरिक्त खर्चे का प्रश्न ही नहीं उठता है। बजट जो है इसका परमिशन ही नहीं देता है। उस तरह का जो इनइफिशियंसीज है उसको कैसे दूर किया जाएगा? ना तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ना दूर किया जाएगा। और जब ना आइडेंटिफाई किया जाएगा, ना दूर किया जाएगा, तो वो जो है उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा? बुरा होगा कंपनी पर। तो फ्लेक्सिबल बजट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग ऑपरेशनल इनइफिशियंसीज। ये बिल्कुल ही ध्यान में रखने की जरूरत है कि द फ्लेक्सिबल बजट मीन्स एलिमिनेशंस ऑफ inefficiencies, identification of inefficiency and elimination of inefficiencies. So budget should be flexible. Inefficiency and wastage can cost the firm in competitive edge in the price sensitive segment. अगर इनइफिशियंसीज है, एक्टिविटी में कहीं इफिशियंसी है,
तो नेचुरली द इनएफिशिएंसी लीड्स टू वेस्टेज, and wastage means overburden, high cost। तो साहब बजट के चलते हम तो भाई अ, अपना कॉस्ट कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बहुत हार्ड एंड फास्ट बजट से जो है इनइफिशियंसी जो है वो दूर हो ही नहीं सकती है। और जब इनइफिशियंसी जो है वो हार्ड एंड फास्ट जो है बजट से जो है दूर ही नहीं हो सकती है, तो ये सब इनइफिशियंसी जो है वो तो वेस्टेज को जन्म देगा, बर्बादी को जन्म देगा। और बर्बादी का मतलब क्या होता है, वेस्टेज का मतलब क्या होता है, हायर कॉस्ट, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। लीजिए, रिलीजियस बजटरी कंट्रोल से हम चाहते हैं कि हम जो है कॉस्ट को जो है प्रोडक्ट कॉस्ट को हम नीचे लाए, प्रोडक्शन कॉस्ट को हम नीचे लाए। होता उल्टा है। रिलीजियस जो है बजटरी कंट्रोल जो है वो इनफिशियंसी जो है एक्टिविटीज में इनइफिशियंसी जो है उसको दूर कर नहीं पाता, बिकॉज हैव मोर एंड मोर एफर्ट्स ऑन टू बी कंट्रोल द कॉस्ट रादर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज। यहां तो अधिक से अधिक ध्यान है जो है कॉस्ट कंट्रोल में। एक्टिविटी किस तरह की हो रही है इस पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा है। और एक्टिविटी वो है कि वो इनइफिशियंट है, नेगेटिव है, जो कि वेस्टेज को जन्म दे रहा है। सो बजट शुड बी फ्लेक्सिबल। द कंट्रोल cost control system of any organization should be flexible, especially the budgetary control. You have to monitor all the activities after budgeting, whether these activities are going on smoothly or not, going on as per standard or not. And if required, you have to take the corrective actions. भले इसके लिए बजट में जो है कुछ फेरबदल करना पड़ जाए। अरे साहब, बजट में ये था कि हम साहब सिक्योरिटी जो है पर जो है इतना खर्चा करेंगे, लेकिन समय ऐसा आ गया है कि अभी बहुत ज़्यादा चोरियां बढ़ गई हैं। तो हम जो है सिक्योरिटी पर जो है कुछ ज़्यादा खर्च तो निश्चित करेंगे। चोरियां बढ़ गई हैं, डकैती बढ़ गई है, जालसाजी बढ़ गई है। जो सिक्योरिटी एक्सपेक्ट है उस पर तो भाई हम कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे ही। ऐसा कभी 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 होता है, कोई कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसा होता है, जैसे कि यही कोरोना काल है। कोरोना काल में देख लीजिए, ये जो है सो ज्वेलरी सबका जो है दुकान में जो है कितना डकैती हो रहा है। 14 करोड़ के ज्वेलरी का डकैती हो गया पटना बाकरगंज में। राजीव नगर में हुआ करोड़ रुपया के लगभग का, मुजफ्फरपुर में हुआ करोड़ 1 करोड़ का जो है सो डकैती। फिर ये मुजफ्फरपुर में मनापुरम गोल्ड का जो है कितना किलो सोना जो है सो उसका डकैती हुआ। वो
ये समय ऐसी परिस्थिति है कि इस समय जो है चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है। तो जब चोरी डकैती बढ़ गई है तो जो बजट में हमारा पहले से सुरक्षा हेतु जो प्रावधान था, या उससे जो है अतिरिक्त जो है सोचना क्या जो है ऑर्गेनाइजेशन का अहित करना है? नहीं। सिक्योरिटी में जो पहले जो खर्च था, जो परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं, उसके अनुसार जो है हम उसमें और भी जो है कुछ जो है आ, खर्च जो है और हम बढ़ा देंगे। समय और परिस्थिति ऐसी है, नहीं करेंगे चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगा, सनमारी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजी जो है ये आपका समाप्त हुआ, और ये कक्षा भी अब समाप्त हो रही है। आगे जो है दूसरी कक्षा की तैयारी की जाएगी। गुड लक।